Hey, hello everyone. Welcome. I'm here. My name is Keshav Garg, the Keshav IT guy. तो मैं आज यहाँ पर अनफॉर्चुनेट मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मेरे बेटे के टीचर्स स्पेशल एजुकेटर अनिल सर बैठे हुए हैं। तो अनिल सर, आप बताएंगे आपको टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है? 10 years है एक्सपीरियंस सर। 10 years of experience. So अनिल सर, क्योंकि हम लोग यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, तो he will help us to translate for all those parents who understand the Telugu. So ये हमें सारे मेरे जो क्वेश्चंस हैं, आज मैं इनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ. You can consider it as a conversation or a podcast. अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैम से. ये है निशा मैम. निशा मैम, आप टोटल एक्सपीरियंस आपको 6.5 और ये हमारे सर हैं. और ये सर जो है यहाँ के, मैं कह लूँ कि पूरी तरीके से ये सारी एक्टिविटीज कराते हैं और ओटी राइट स्पीच थेरेपीज कराते हैं. भीमा सर, ही इज अ भीमा सर राइट. तो जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है. ये भीम की तरह पूरे बच्चों को संभाल के रखे हैं और उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं. और आज हम जानेंगे, ये लाइव जो है ना सिर्फ मेरे लिए रहेगा, ये सब उन पेरेंट्स के लिए है जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं. और वो आज हम जानेंगे, अनफोल्ड करेंगे कि ऑटिज्म क्या होता है और ऑटिज्म से के लिए हमें क्या करना चाहिए. क्योंकि देखिए, सबके पास बिट्स एंड पीसेस में जानकारी है, बट वी आर हियर विद द एक्सपर्ट्स एंड दीज गाइज विल हेल्प यू आउट बिकॉज दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टुवर्ड्स helping the pupil, helping the kids. So let's start with my first question. So again, I wanted to thank all of them for coming forward for this cause. Bhima sir, Anil sir, Nisha ma'am. So let's start. आपके हिसाब से what is autism? Autism क्या है? Autism एक डिसऑर्डर है सर. ओके, ऑटिज्म डिसऑर्डर में आप देख सकते हो बच्चा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, फिर बाद में स्पीच डिले होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह इंटरेक्ट नहीं होगा, सोशल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा. मतलब क्या है, स्पीच डिले होने के हाइपर एक्टिव ज़्यादा रहेगा. वो एडीएचडी, कोई बच्चे में क्या है एडीएचडी ऑटिज्म एक साथ रहता है, तो ये सब सिम्टम्स रहता है. ये सब देख के हम आगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन रहता है सर, उसके हिसाब से बच्चे डेवलप नहीं होते, डेवलपमेंट डिले रहता है उनमें. तो फिर प्रॉब्लम देख के पता करते हैं ऐसे ऑटिज्म है. राइट. सो कैन वी गो लिटिल लाउडर थोड़ा सा? अनिल सर, कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑटिज्म इन तेलुगु? ఆటిజం అనేది చాలా మందికి ఆటిజం అంటే కొందరు పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లల్ని బయట తీయలేకపోతున్నారు, భయపడుతున్నారు. కానీ అది కాదు, పిల్లల్ని మొదటిగా సమాజంలో చూపించాలి. ఇది నా పిల్లవాడిని చూపించినప్పుడే మనలో మొదటిగా పేరెంట్స్లో తల్లిదండ్రులు మొదటిగా భయం అనేది వెళ్ళిపోవాలి. ఆ భయం వెళ్ళిపోయినప్పుడే పిల్లల్ని మనం బాగు చేయగలుగుతాం. కానీ కొందరు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ కొందరు పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లవాడిని బయట తీయలేకపోతున్నారు. ఎందుకు? నా పిల్లవాడు ఆటిజం ఉన్నాడు, సో పిల్లవాడు ఆటిజం ఉన్నాడని కొందరు పేరెంట్స్ భయపడుతున్నారు. అది కాదు, మన సమాజం చూపించాం. భగవంతుడు ఇచ్చిండు, అది దాని పరిష్కారం భగవంతుడు ఇచ్చేస్తాడు. మనం అది నీకెందుకు ఇచ్చాడంటే నువ్వు దాన్ని పరిష్కరిస్తావని, కాబట్టి భగవంతుడు నీకు ఇచ్చాడు. ఇతరులకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? అది నీ వల్ల అవుతుంది అని నీకు ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఫస్ట్ ఇది మనం మొదటిగా పేరెంట్స్ ని acceptance. You need the acceptance. Yes. So guys, I am also living in Hyderabad from past 17 years and I can understand each and every emotions of Anil sir, how passionate he is. The all thing he wanted to tell कि parents need not to hide their kid, they need to accept it. First of all, acceptance. When you accept your kid, then you can do wonder. So I have seen, Albert Einstein was an autistic guy. Yes. There are so many examples of autism. Yes. So we should just let them just do a therapy. There are people who wander here and there, but we should focus on therapy. So let's talk. Just now you told Einstein. Einstein के తల్లి బహు గొప్పది. Okay. ఎందుకంటే ఐన్స్టీన్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక బిహేవ్. అతనికి చదువుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న టీచర్స్ ఏమన్నారంటే ఇతనికి నేను చదువు చెప్పలేదని వెలివేశారు బయట. ఆ వెలివేసినప్పుడు తల్లికి ఐన్స్టీన్ తల్లికి అడిగాడు, అమ్మా వీళ్ళు ఎందుకు నాకు వెలివేశారు అని తల్లి అడిగినప్పుడు ఆ కుమారుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, తల్లి చెప్పిన మాట, బిడా వాళ్ళు నీకు చదువు చెప్పలేరంట, ఆ చదువు చెప్పలేక వాళ్ళ జ్ఞానం ఉన్నది వాళ్ళకి లేదంట, వాళ్ళకి చెప్పడానికి సాధ్యమవుదంట, అది నేనే నీకు చెప్తాను. एक्चुअली क्या है सर, उनको बहुत अच्छा नॉलेज रहता है. ऑटिज्म बच्चे जो रहते हैं ना, बहुत नॉलेज रहता है, लेकिन उनको पुशअप करने नहीं, मतलब वो क्या है, उनको थोड़ा सपोर्ट
सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए। अगर हम Right. सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली वो भी शाइन करेंगे Correct, नॉर्मल correct, केस correct. से। సో ఐన్స్టీన్ का बारे में बताया ना సార్. Mhm. సో వానికి పెళ్ళేసినప్పుడు తల్లి చదువు చెప్పింది. ఈ రోజు మనం వెలుతురి కింద కూర్చున్నామంటే తన యొక్క తల్లి యొక్క ప్రేరణ, తన తల్లి యొక్క దేవునికి మొర, దీని వలన ఇతను వచ్చాడు. Awesome, very nice. Thank you, sir. So that tells the kind of commitment, and you know we have a lot of heroes. Let's understand, ma'am. Can you tell me what are the development milestone? सर डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोले तो देखिए बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है 1 to 3 इयर्स में लाइक वो स्माइल करेगा, वो टाइम पे स्माइल करता है कि नहीं वो, फिर बाद में हेड बैंगिंग, फिर उसके बाद में आप कोई सॉन्ग्स करे तो सॉन्ग्स की तरफ देखना, ये सब देखना चाहिए। फिर 4 to 6 इयर्स तक 4 to 6 मंथ्स तक आप देखिए ऑब्वियसली क्राउलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर बाद में क्राउलिंग हो जाने के बाद क्राउलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद में स्माइल देना, फिर Okay. थोड़ा बैबलिंग साउंड स्टार्ट करना, फिर सॉलिड आइटम्स जो होता है क्योंकि बच्चे में आप देखते हो ऑटिज्म किड्स में 6 इयर्स 7 इयर्स किड्स को अब तक च्यूइंग ही नहीं आता है सर। Right. क्यों बोले तो वो टाइम पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन के टाइम पे पेरेंट्स क्या है देखते नहीं कि बिल्कुल। वो सॉलिड चीज को च्यू करने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Right. वो सब देखना चाहिए। तो Correct. अगर वो सब होने के बाद में हम मतलब 6 इयर्स से 4 इयर्स के टाइम पे हमें दिक्कत नहीं होगा बच्चे को। बिल्कुल। फिर बाद में देखिए फिर 9 to 12 मंथ्स तक चलने के मतलब अपने पैर पे खड़ा होके चलना, फिर वर्ड बोलना स्टार्ट करेगा जैसे कि मम्मा पापा, न्यू वर्ड्स बोलना स्टार्ट करेगा, फिर Right. फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब आप जो बोलते हो वो फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस। Very nice. अगर ये सब वो टाइम पे महीना पे बराबर करता जाए तो बच्चे में प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर ये सब डिले होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप वही टाइम पे लेके आ सकते हो थेरेपी सेंटर या फिर कहीं पे स्क्रीनिंग करा सकते हो। कराने के बाद में फिर वही टाइम पे अर्ली इंटरवेंशन दिए तो बच्चे में थोड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा सर। आफ्टर 6 इयर्स बोले तो इट्स डिफिकल्ट। Right. No, very nice. I think मैम ने जो बातें बताई that is very right. Anil sir, can you help us translate this for our audience in Hyderabad? నేను ఏం చెప్పదలుచున్నా అంటే ఈ మైల్ స్టోన్ అనేది చెప్పడం ఒక వ్యక్తి అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొదటిగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ సిటీ కల్చర్ వచ్చే విషయానికి మాత్రము ఇద్దరు లేరు, జాబర్స్ అయిపోయారు. ఆ పిల్లవాడికి ఒంటరి వదిలేయడము, వాడికి సరిగా మసాజ్ చేయకపోవడము, వాడికి సరిగా స్నానం చేయించకపోవడము, దానివల్ల పిల్లవాడానికి వాడికి అప్పుడు గుర్తించగలుగుతాం. పేరెంట్స్ మొదటి వాడికి స్పెండ్ చేస్తలేరు పేరెంట్స్. దీనివల్ల పిల్లల డెవలప్ అనేది చాలా డిలే అవుతుంది. అది కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా డిలే అవుతుంది. एक्चुअली क्या है सर, लाइफस्टाइल है हमारा, जो न्यू जनरेशन का लाइफस्टाइल है वो आके मतलब कहीं मट्टी पे नहीं जाने देना, बच्चों को पानी पे नहीं छोड़ना, बाहर पे खेलने नहीं देना, वैसे सब प्रॉब्लम होता है। वो आजकल के जनरेशन के वजह से ही पेरेंट्स लोग क्या है दोनों कम्युनिकेट नहीं हो पाते, उन लोग अपने अपने जॉब पे जाते हैं, उनको मतलब अकेला छोड़ देते, तो इस वजह से ये जनरेशन में ज्यादा होता है सर। बहुत अच्छे से जैसे मैम और सर ने बताया, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन ये दो चीजें जो होती हैं, अगर बच्चे को आप थोड़ा कम करते हो, लाइफस्टाइल जैसे कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली में लोग रह रहे हैं, पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सब बच्चे सबके साथ जाके खेलते थे, अभी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो यू सी दैट दे आर रिस्ट्रिक्टेड, राइट? दे डोंट I remember when I was a young, right? I never used to take permission to go out and play. मेरे फ्रेंड्स आते थे, मुझे लेके चले जाते थे, तो वो एक और एक फैक्टर हो रहा है। ज्यादा बच्चे मोबाइल से चिपके हुए हैं, ज्यादा बच्चे टीवी से चिपके हुए हैं। तो अभी हमने माइलस्टोन के बारे में जाना। I'm really thankful to both of you for explaining that, and Bhima sir for also helping us with all these things. How do you build a writing skill? Because सभी लोगों को एक पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सन, राइट, व्हेन ही वाज बॉर्न आफ्टर 3 years आई रियलाइज कि उसको प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आई डिसाइडेड टू गो होम। फिर मेरी वाइफ ने बोला नहीं आपको यहाँ रुकना है, घर जाके क्या करोगे? मेरे भैया ने भाई लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला बेटा तू आ जा, हम सब कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट मुझे लगा कि मैं हैदराबाद जैसी सिटी में रह रहा हूँ और हैदराबाद से अगर वहां चला जाऊंगा तो वहां तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे को। तो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक to keep him in Hyderabad, and now I see the changes and I have full trust कि आप लोगों की जो टीम है वो उस मेरे बेटे को एक अच्छा एटलीस्ट 100% नहीं तो कम से कम 70% तक तो ला सकता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो उसी तर्ज पे कि क्योंकि अगर मैं सोचूं मेरे बेटे को कि कुछ शौक ठीक कराना है तो उसको राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करोगे
सर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको पहले ही देखना चाहिए कि बच्चा होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्या है देखिए नॉर्मल किड्स में और स्पेशल किड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है सर। क्योंकि नॉर्मल बच्चे क्या है पेंसिल पकड़ते और लिख देते प्रैक्टिस दिए, तो इनको थोड़ा स्पेशल नीड्स होना चाहिए, होल्ड कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। पिंसर ग्रास्प, पेंसिल जो पकड़ता है वो एक्चुअली पिंसर ग्रास्प होता है सर। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हमें फाइन मोटर एक्टिविटी देना चाहिए, लाइक सैंड रबिंग हो गया हो, कलरिंग हो गया हो, स्क्रिबलिंग हो गया हो। फिर बाद में उसको क्ले पुलिंग रहता, देखिए क्ले दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पिंसर ग्रास्प है, क्योंकि वो क्या है पिंच करते हैं ऐसे, वो करना चाहिए। फिर बाद में आटा को मिक्स करने का, कॉर्नफ्लोर बैटर है, फिर वो सब मिक्सिंग करना चाहिए। फिर बच्चा का इसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है एक्चुअली, फिर कंप्रेशंस देना चाहिए, मसाजिंग देना चाहिए, फिर प्ले एक्टिविटी देना चाहिए। ये सब देने के बाद में ऑब्वियसली फिंगर्स में स्ट्रेंथ आता है तो वो होल्ड कर पाता है सर। Very nice, very good, very good. We just learnt about it. Sir, can you help us for our, the population here? ఎందుకంటే చెప్తాను సార్. ఫస్ట్ వాళ్ళకు మనము పిల్లవాడికి ఫైన్ మోటార్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫైన్ మోటార్ ఎలా ఉంది. యాక్చువల్గా నేను ఒక సర్చ్లో ఒక పరిశోధన చేసిన ప్రకారము రైటింగ్ అనేది చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే 3 years 4 years వస్తుందని చెప్తున్నారు. కాదది 6 years తర్వాత వస్తుందని నిన్న వెలువడింది ఒక 2 days బ్యాక్. ఎందుకంటే 6 years దాకా ఈ జాయింట్ అనేది బోన్స్ అనేది ఇంకా గట్టిగా కావు అప్పుడు దాకా 6 years దాకా. ఆ 6 years తర్వాత గట్టిగా అవుతాగా అప్పుడు పిల్లవాడికి రైటింగ్ స్కిల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇది శాస్త్రీయంగా నేను రీసెంట్గా సర్చ్లో జరిగిన విషయం ఇది. సో ఇది ఎందుకంటే ఇవి అప్పటికి గట్టిగా ఉండవు కదా, ఇవి మొత్తము అప్పటికి గట్టిగా ఉండవు. ఎందుకంటే ఇవి జాయింట్స్ కాంప్లెక్స్ ఇవి మొత్తం గట్టిగా ఉండవు. ఎందుకంటే అప్పటికి గట్టిగా ఉండవు కాబట్టి దానికి మనము 6 years దాకా గట్టిగా అవుతాయి, అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతాయి రైటింగ్ స్కిల్. కానీ దానికంటే ముందు మన పిల్లలకు ఒక ఫైన్ మీటర్ యాక్టివిటీ చూడండి. ఒక సాధారణ పిల్లవాడు ఒక చేతితో పట్టుకున్న వస్తువు పెద్దగా అయితే కొద్దీ ఒక సంవత్సరం కిడ్డు ఒక చేతితో పట్టుకుంటాడు వస్తువు. దాని తర్వాత తన యొక్క ఏజ్ పెరుగుతా కొద్దీ ఆ ఒక చేతితో 2 చేతితో పట్టుకున్న వస్తువు ఒక చేతితో పట్టుకుంటాడు. ఓకే. అదే ఒక పిల్లవాడు ఏదో సులువు ఉన్న బ్యాట్ ఆడిన తర్వాత సులభంగా ఉన్న ఆటను ఆడతాడు. తర్వాత Fine motor and gross motor. Gross That's motor. what you are trying to say. Right, Right? yes. So gross motor is physical. Not physical. Only So fine fine motor. motor. See, yeah, that's what I'm saying. I'm also not very aware, but with this podcast, with this video, I'm going to learn a lot. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. So चलो अपन आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक अवेयरनेस है. हम चाहते हैं कि सभी लोग इस चीज को जानें और आगे बढ़ें. आप कुछ शॉर्ट में बताइए कि डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, मतलब बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट में. डाइट चार्ट क्या होता है बोले तो नॉर्मल किड्स और ऑब्वियसली स्पेशल किड्स में डिफरेंस होता है सर। अभी हम ही ले लीजिए, हम शुगर ज़्यादा खाए तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है सर, तो उसमें क्या है हाइपर एक्टिव होते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा डाइट रहता है। क्या बोले तो फ्रूट्स आके अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि एप्पल, मैंगो और आके पपाया, क्योंकि हीट फ्रूट्स होता है और ज़्यादा शुगर कंटेंट रहता है। इसमें क्या है बच्चे आके सेल्फ लाफिंग वैसे। फिर शुगर अवॉइड करना चाहिए सर। फिर डायरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ग्लूटेन फ्री देना चाहिए इनको। फिर बाद में क्या है उसमें भी देखना चाहिए, ग्लूटेन फ्री एकदम अवॉइड करना सर। व्हीट और बेक आइटम्स बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और चॉकलेट्स तो बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि शुगर कंटेंट फूड्स और ये सब ज़्यादा खाएगा तो बच्चा हाइपर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें कितना भी थेरेपी दो वो आके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में ही जाएगा सर। Very nice. Thank you. Anil sir. సార్ మొదటిగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే డైట్ చార్ట్ అనే పిల్లలకి పుట్టిన వెంటనే చాలామంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే తల్లిపాలు ఇవ్వక ఇతర పాలు ఇస్తున్నారు. అది కాదు, మన పితృలు చెప్పారు తల్లిపాలు అనేది పవిత్రమైనది అంట. అపవిత్రమైన పాలు తీసుకొచ్చి పిల్లవాడిని ఇచ్చి మొత్తం మీ పిల్లగానికి ఏది లేకుండా చేస్తున్నారు. దానివల్ల పిల్లవాడికి ఏది తింటుండో ఏది తక్కువ తెలుస్తుంది. మొదటిగా నేను చెప్పదలిచేది ఏంటంటే మొదటిగా తల్లిపాలు మీరు ఇవ్వండి. తల్లిపాలు ఇచ్చినాకనే ఏదైనా మీరు పాలు ఇవ్వండి, अंते लाइट फूड नो 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 बिफोर अर्ली इंटरवेंशन में क्या देना चाहिए वो बोल रहे हैं Okay, सर। फिर okay. इसके बाद में फूड आइटम्स क्या देना बोलेंगे। ओके. सो आई थिंक हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए हम अलग से और जो सारे लोग हैं उन्हें हम बताएंगे कि डाइट क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इसमें थ्योरी है सर आजकल सब मिलावटी हो गया है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. ठीक है. अब क्या सारे बच्चे every kid has the same behavior or does it vary? No.
हर एक किड का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होता है सर, और शायद हम अपने पूरा लाइफ टाइम इतने एक्सपीरियंस में कुछ न्यू बिहेवियर्स भी हो सकता है जो कि हम अब तक देखे भी नहीं। जैसे कि कोई बच्चा देखे साइड गेजिंग प्रॉब्लम होता है, हैंड क्लैपिंग प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में हेड बैंगिंग प्रॉब्लम होता है, फिर हेड नॉडिंग प्रॉब्लम होता है। ये सब प्रॉब्लम नहीं हो के भी न्यू बिहेवियर हो सकता है बच्चे में, जैसे कि सेल्फ लाफिंग रहना, फिर बाद में दूसरों को हिटिंग करना, पिंचिंग करना, ये सब वन बिहेवियर्स होते हैं सर बच्चों में। बहुत सारा बिहेवियर्स होता है, वो आके हर एक पीरियड में सेम नहीं होके भी डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। बस हमें पता करना चाहिए उसका क्या बिहेवियर्स है, उसके हिसाब से हम टेक्निक्स यूज करके थेरेपी देना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू मैम फॉर दैट। సార్ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఈ 5 ఫింగర్లు ఉన్నాయి, 5 ఫింగర్లు కూడా ఒకే విధంగా ఉండవు. పిల్లలు కూడా 5 రకాలు ఉంటారు. ఓకే, వెరీ నైస్. యా ఓకేనా? ఒక పిల్లవాడు ఏడేజ్డ్ ఉంటాడు, రైట్. ఒక పిల్లవాడు ఆర్టిస్టిక్ ఉంటాడు, ఒక పిల్లవాడు బిహేవియర్స్ పిల్లవాడు. ఎందుకంటే ఇవి డిఫరెంట్ కిడ్స్ ఉంటారు. ఈ 5 ఫింగర్స్ ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాము. సో అదే 5 ఫింగర్స్ ఉన్న కిడ్స్ మనం ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? సో నేను చేసే చెప్పాను, ఈ 5 ఫింగర్స్ ఉన్న ఫింగర్స్ ఏవైతే మనము ఒకే విధంగా లేవో బిహేవియర్ అనే పిల్లలు కూడా అదే విధంగా ఉంటారు. ఓకే. సో దీన్ని మనము ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి, వాటిలో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది. ఒక పిల్లగాడికి గ్రాస్ మోటార్ డెవలప్ డిలే ఉంటుంది, ఒక పిల్లవాడికి ఏమో ఐ కోఆర్డినేట్ డిలే ఉంటుంది, ఒక పిల్లవాడికి ఏమో ఏడే స్కిల్ చేయడు, ఇంకొక పిల్లవాడు బిహేవియర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఇంకొక పిల్లవాడు ఏడేజ్డ్ ఉంటాడు, ఇంకొక పిల్లలు ఆర్టిజం ఉంటాడు, ఇంకొక పిల్లలు హైపో కిడ్ ఉంటాడు, ఇంకొక పిల్లలు హైపర్ కిడ్ ఉంటాడు. ఓకే. సో నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 ఫింగర్ వరకు ఒకే విధంగా ఉండవు, ఆ బిహేవియర్స్ కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి సార్. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर दैट मैम. एंड हम आते हैं नेक्स्ट लेवल. आपने कहा ADHD, डाउन सिंड्रोम. सो बेसिकली सभी को क्या लगता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सन अभी 11 ईयर में रनिंग है, सबको लगता है कि everybody, all the kid who is not able to behave normally, they're all mentally retarded. But मैंने देयर आर कैटेगरीज, जैसे आपने बताया 5 उंगली और 5 थंब है, सभी पांचों अलग अलग होती है. उसी तरीके से ऑटिज्म है, ADHD है, डाउन सिंड्रोम है, मेंटली रिटार्डेड है, और बहुत सारी चीजें हैं. तो आप ये डाउन सिंड्रोम तो खैर आई थिंक इंटरनेट पे बहुत सारे चीजें हैं और सब लोग समझ सकते हैं, है ना. और कभी किसी चीज से हारना नहीं है, बैठ के हार के बैठना नहीं है कि मेरे को ये हो गया. सिंड्रोम में क्या है, सब सारे बच्चों का फेस आके सिमिलर रहेगा सर. ओके. नोज आके फ्लैट नोज रहेगा, स्मॉल आइज रहेगा, वो आके एक क्रोमोसोम डिसऑर्डर है सर. ओके. बट ये लोग तो जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं वो तो नॉर्मल स्टडी कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा नहीं रहता. लाइफ स्पैन का इशू होता है, बिल्कुल लाइफ स्पैन का इशू होता है. ये एक थोड़ा सा चैलेंज है. क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में एक छोटी बच्ची थी, जस्ट वो आके 4.5 इयर्स की है, वो उसका डेथ हो गया. क्यों? कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम है. मतलब उनका एज क्या है, कभी हम आके ये नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब तक रहता है और कब जा सकता है. तो आई थिंक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि एक NIPT टेस्ट होता है, और जब आप प्रेगनेंसी के दौरान एक टेस्ट होता है, वो हर एक पेरेंट वो टेस्ट जरूर कराएं, है ना. उस टेस्ट के बाद आपकी क्रोमोसोमल जो बना रहे हैं. और इसमें एक सबसे बड़ा मिथ क्या है बोले तो, डाउन सिंड्रोम किड है तो नेक्स्ट बच्चा भी डाउन सिंड्रोम होगा, ऑटिज्म किड है तो नेक्स्ट बच्चा नहीं, आप दूर मत जाइए. मैं जैसे क्योंकि पेरेंट्स क्या है, नेक्स्ट बेबी को प्लान करना ही छोड़ देते हैं. बिल्कुल. आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो अभी देख रहा है या जो बाद में देखेगा, या आपके आसपास कोई लोग हैं, जब आपका पहला बच्चा अगर आपको 2 या 3 साल में डिटेक्ट होता है कि उसे प्रॉब्लम है, प्लीज गैप ना रखें. एक बच्चे से दूसरे बच्चे में गैप ना रखें. मेरे से वो गलती हुई, हम लोगों ने 8 साल इंतजार किया. अब हमारी बेटी के आने के बाद हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है. मेरी बेटी बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है अपने भाई के लिए. तो प्लीज मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, होता है सर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप ये ना सोचे कि मेरे को पहले बच्चे में प्रॉब्लम है. आप जहाँ पे क्रिटिकल प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे मैडम हैं, आप वरलक्ष्मी मैडम हैं, रेनबो हॉस्पिटल में, प्रणाम में अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. मतलब हर एक जगह कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है. क्रिटिकल प्रेगनेंसी के जो एक्सपर्ट होते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे. अगर आपको कोई जेनेटिक टेस्ट कराना है तो जेनेटिक टेस्ट कराओ, या आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए और उसके बाद आप प्लान करिए. क्योंकि
भगवान जो है आपकी परीक्षा लेता है और उसके बाद फिर से आपको एक अच्छा, और आज मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है, उसके 3 दिन बाद बर्थडे पार्टी है और 12 मई को उसको वो 3 साल होने वाली है और 3 साल में वो बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है। तो कोई भी, सारी बीमारियां एक जैसी नहीं होती, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैडम आप कल बात अपन कर रहे थे शायद इस बारे में, आपने बोला कि मुंबई में एक कुछ होता है ना, क्या बहुत ही स्टेम सेल्स होता है, तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं स्टेम सेल्स के बारे में। लेट्स नॉट कमेंट अबाउट दैट, बट जहां तक है थेरेपी इज द अल्टीमेट थिंग फॉर एनी ऑफ द स्पेशल सर देखिए, ये आपकी डिजीज नहीं है ऑब्वियसली, तो हमें मेडिसिन देके या फिर कुछ ट्रीटमेंट देना, ये डिसऑर्डर है, ऑब्वियसली थेरेपी से ही होता है। बच्चों को क्या है, थेरेपी देना चाहिए सर, मसाजिंग देना चाहिए, वैसे उसको छोड़ के कंज्यूम, जैसे कि ओरल कंज्यूम, कोई पेरेंट्स क्या करते, आप फिश ऑयल दे देते, फिर उसके बाद में टैबलेट्स, होम्योपैथी टैबलेट देते, उसमें क्या है, बच्चों में साइड इफेक्ट होता है सर, वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रॉजीनेस हो जाते, तो इसीलिए ये सब जो चीज़, स्टेम सेल्स भी बोलते कि कोई ठीक होते बोल के, लेकिन वो भी एक मिथ्या है, ये बच्चों को थेरेपी के अलावा और कुछ ठीक नहीं कर सकता सर। ऑलराइट, वेरी नाइस सर। आप इससे पहले एक बात बताए जी, बहुत साल के बाद आपको बेटे हुए एक बात बताए, आपको मैं कंग्रेचुलेशन बोलूंगा, కైకిలే बोले సార్, అందరు చూడండి, ఒక పిల్లవాడు పుట్టిన వెంటనే దాన్ని ఆపుతారు. 10 మంది పిల్లలు కనడం కంటే ఇలాంటి పిల్లల్ని ఒక్కరికి కానీ మీరు ఈ సమాజంలో చూపించండి, ఇలాంటి ఒక్క పిల్లని మీరు హ్యాండిల్ చేయండి, ఇది గొప్పతనం అని చెప్పదలుచుకున్నాను. 10 మందిని మీరు హ్యాండిల్ చేయడం పెద్దది కాదు, 10 మందిని హ్యాండిల్ చేయండి, ఇలాంటి పిల్లలు ఒక్కరిని మీరు హ్యాండిల్ చేయండి, ఇలాంటి పిల్లలు మీరు బయట తీసుకొని చూపించండి. కానీ ఇలాంటి పిల్లలు మీరు క్రిటిసైజ్ దయచేసి ఈ సమాజంలో ఒకటే కోరుతున్నాను, ఇలాంటి పిల్లల్ని మీరు క్రిటిసైజ్ చేయకండి ప్లీజ్, దయచేసి. ఎక్కడ అపార్ట్మెంట్లో కానీ, సో ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, ప్లీజ్ దయచేసి మీరు ఎక్కడ కూడా ఈ పిల్లల్ని క్రిటిసైజ్ చేయకండి. ఒక పిల్లగానికి ఇంత మీరు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు, మీరు 10 మంది మీరు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నారు. దానికి నిజం ఈ పేరెంట్సే చాలా గొప్ప పేరెంట్స్ నేను చెప్పదలుస్తాను ఒక థెరపిస్ట్గా. वेरी नाइस, थैंक यू. सो आई थिंक मैम आप बताएंगे सर ने. सर देखिए, कोई क्या करते हैं, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते, ऑटिज्म है, एडीएचडी प्रॉब्लम है बोले तो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर लेके नहीं आते, थेरेपी सेंटर नहीं लेके जाते क्योंकि मेरा बच्चा ऐसे, वो डिसअपॉइंट हो जाते. लेकिन रियलिटी को हम एक्सेप्ट करना ना सर, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करके उनको सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा इंप्रूव होगा. और क्या, ये रियलिटी है और उनको सपोर्ट रहेगा, चलो मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर वाले भी सपोर्ट करते. नहीं, बिल्कुल मैं बहुत एग्री करता हूँ दोनों की बात का. थैंक यू सो मच अनिल सर, बिकॉज इट हैज मोटिवेटेड मी. मैं आपको बताऊं, मतलब मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, मैं क्या था, रमता जोगी बहता पानी, मतलब आपको शायद समझ में ना आए. मैं जब स्कूल में था, आई वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ माय स्कूल, देन आई वेंट इनटू कॉलेज, आई वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज 4th ईयर में. फिर मुझे लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे साथ. ऑल ऑफ सडन हमारे पहला बेटा हुआ और बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, और उसके बाद 8th मंथ में बॉर्न हुआ. ही वॉज प्रीमेच्योर, तो थोड़ा मुश्किल था, होम टाउन में इसकी डिलीवरी हुई. तो हमें लगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है. लगभग 2 साल के बाद हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लो. मैंने बोला कौन सा ग्रुप सर? बोले स्पेशल बच्चों का ग्रुप. तो मैंने स्पेशल बच्चों का ग्रुप क्या होता है वो? तो बोले आपके बच्चा अपना आप कुछ नहीं कर पाएगा. दैट सैटर्ड माई लाइफ. मैंने बोला हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब व्हाई मी? ये सब पेरेंट्स सोचते हैं. मैं भी डर रहा था कि अरे यार सब लोगों को समझ में आएगा, सबको पता चलेगा, अरे मैं कैसे करूंगा, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, मतलब आई वाज लाइक दिस, आई वाज लाइक दैट. देन I am so thankful to the God, I am thankful to my parents, I am thankful to my brother कि they have my partner. I am lucky to have Roshni as my partner. She made me realize जो है accept करते हैं. She accepted within a month. It took 1 year for me to accept. 1 ईयर के बाद हमने थेरेपी चालू किया. सो जब थेरेपी चालू किए तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि दिस इज द ओनली थिंग. लेट्स ओके, इट्स ओके टू, बट हमने जो टाइम दिया, हम सोचे कि उस पर फोकस करेंगे. हम लोग एक बच्चा अडॉप्ट करने वाले थे, लेकिन मेरी माँ बिंदु ने बोला कि नहीं, अपना बेटा आप रखो, जब आप कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तब आप अडॉप्ट की तरफ बढ़ो. तो फिर हमने वो बच्चा खुद से प्लान किया और फिर हमारी लाइफ चेंज हो गई. तो इसलिए मैं आज उस हर पेरेंट्स तक ये मैसेज, यहाँ पर कोई मेरी
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे कोई प्रोपोगंडा या कुछ नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, मेरी एक मैनेजर है, उनसे जब मैं लास्ट ईयर बात किया था कि यूएस में इतनी अवेयरनेस है, इंडिया में अवेयरनेस क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आपका सोल्यूशन है आप इंडिया में रह के अवेयरनेस फैलाओ। तो वो मैं कह रहा हूँ, जो लोग मेरे भाई अफरोज, निमीस और जो मुझे अभी देख रहे हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आसपास के जो बच्चे हैं उन सब में अवेयरनेस फैलाओ, उनको इंक्लूड करो सोसाइटी के साथ। हमें उन सबको इंक्लूड करना है और वो मेरा एक उद्देश्य है और मैं इन लोगों को बहुत थैंकफुल हूं कि उस उद्देश्य में ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू मैम। लेट्स आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में अपन लोग आगे बढ़ते हैं। डज एज मैटर्स इन द स्पीच थेरेपी? ऑब्वियसली सर। ओके। क्योंकि देखिए स्पीच डिले है तो बच्चे में 2.5 ईयर्स में तो पता चल जाता है हमें, वहाँ की बबलिंग साउंड 1 ईयर में स्टार्ट कर देते हैं वर्ड बोलना। अगर वो नहीं होगा तो बच्चों को लेके आना चाहिए सर वही टाइम पे थेरेपी में, क्योंकि 6 ईयर्स के बाद 7 ईयर्स के बाद में क्या होता है बोले तो जितना भी हम थेरेपी दिए तो वो इम्प्रूव होना इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है बच्चों में। कुछ भी थेरेपी हम अर्ली इंटरवेंशन में दिए तो वो डेवलप होता है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, बट कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहना चाहिए। राइट, फाइन। अनिल सर, మేడం చెప్పింది ఏంటంటే సార్, పిల్లవాడికి మనం అప్పుడు గుర్తుకలిసి ఎప్పుడు 10 months ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు, ఒక చిన్న వర్డ్స్ వాడతాడు వాడు. సో అప్పుడు మనం ఆ పిల్లవాడిని అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. కానీ ఈ సమాజంలో పేరెంట్స్ పిల్లవాడిని అబ్జర్వేషన్ చేస్తలేదు. డిలే, ఓ బయటికి తీసుకొస్తే ఎవరేమంటారో, మా పిల్లవాడికి స్పీచ్ వస్తలేదు కదా, బయటికి తీస్తే ఎవరేమంటారని కాదు. కావాల్సి ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే పేరెంట్స్ ఒకటే, మీ పిల్లవాడిని ఎంత తొందర అయితే అంత తొందర మీరు వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి మీరు తొందర థెరపీ सेंटर తీసుకెళ్ళండి. ఇది నా యొక్క రిక్వెస్ట్। सर मेरा एक्सपीरियंस में एक केस भी है ऐसा, बच्चा आके 3 साल में बोलना स्टार्ट किया, 4 इयर्स में बोलना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में वो नहीं बोल रहा है। तो इसमें क्या है, पेरेंट्स आके उसको छोड़ ऑब्वियसली डे केयर में छोड़ के जॉब के लिए चले जाते थे, तो उस वजह से कम्युनिकेट नहीं, उसको कोई बात करने वाला नहीं था, फोन दे देते थे, इस वजह से क्या है वो बोलना ही बंद कर दिया। तो ऐसे केसेस भी होता है सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है, आपके लाइफ में बच्चे अप और डाउन होते हैं। मतलब हमारे बेटे के साथ क्या हुआ, एक श्वेता मैम थी, स्पीच थेरेपी, जैसे थेरेपी के बहुत सारे स्टेजेस हैं और स्टेजेस में क्या होता है, वो जैसी स्टार्ट किया था जब सेंटेंस व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज ऋषि, हाउ आर यू, आई एम फाइन, फिर उसके बाद वो मैम को कहीं और जाना पड़ा, सी रिलोकेटेड, वो फिर से दूसरा टीचर चेंज हुआ, फिर से दूसरा टीचर चेंज हुआ, तो ही वाज जहां वो बॉन्ड बनाता था, क्योंकि इन बच्चों में ये होता है कि वो आपके वर्ल्ड में नहीं आएंगे, आपको उनके वर्ल्ड में घुसना पड़ेगा। तो व्हेन दे रियलाइज फीलिंग कि हाँ ये मेरा बंदा है, ये मेरा दोस्त है, तब वो आपसे ओपन अप होता है। तो मेरे पास में पहले लगभग 1000 लोगों की लिस्ट थी दोस्तों की, अब वो धीरे धीरे मैं उस इनर सर्कल को कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के पास सिर्फ एक दोस्त है, वो कि मैं, बहुत सारे दोस्त नहीं, उसका सिर्फ एक दोस्त है। तो आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, आप अपने बच्चों के पेरेंट्स से ज्यादा आप अपने उनके दोस्त बने, क्योंकि उनको कोई दोस्त नहीं मिलता है। और लेट्स टॉक अबाउट व्हाई मोबाइल इज हार्मफुल मैम, व्हाई मोबाइल इज हार्मफुल फॉर सच किड्स? बहुत हार्मफुल है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल इसलिए हार्मफुल है, देखिए मोबाइल आके ओनली बोलता है, लेकिन वो आके बच्चा कम्युनिकेट नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा सिर्फ सुनता है सर उसमें, लेकिन वो बोलने का चीज़ नहीं रहता। लेकिन एक ह्यूमन बींग्स, अभी देखिए हम किसी से बात करते हैं तो आप पूछेंगे मैं आंसर दूंगी, लेकिन वो चीज़ तो प्रोसेस रहता ही नहीं है मोबाइल में, ओनली लिसनिंग। ऑब्वियसली मोबाइल का स्क्रीन तो हार्मफुल रहता ही है और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सर। इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, बच्चे क्या है इक्लोलिया प्रॉब्लम करता है मोबाइल से। बिल्कुल मैम, और आजकल ये चल भी रहा है वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ आ रहा है। सर आप बताएंगे मोबाइल के हार्म? మొబైల్ వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటంటే సార్, పిల్లవాడిని మొదటిగా వాడు అతని మైకంలో ఉండిపోతాడు మొబైల్ చూసుకుంటా, సో ఇతరులు చెప్పింది కూడా అతను వినలేడు. సో నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, మీ పిల్లవాడిని ఎంత దూరం మొబైల్ని చూస్తాను. మన పూర్వీకులు మనకి మొబైల్ ఇచ్చి మనకు పెంచలేదు, మన పూర్వీకులు మనతో మాట్లాడి పెంచారు, మన పూర్వీకులు మనకు తనతో కూర్చోబెట్టి మనకు అన్నం తినిపించారు. కానీ ఈనాటి కాలం అది కాదు, తన పిల్లల్ని వదిలేసి వాళ్ళ ఫోన్ ఇస్తున్నారు, తినిపిస్తున్నారు. అలా మన పూర్వీకులు అలా చేయలేదు, ముందు పెట్టారు మమ్మల్ని చూపారు. నేనేం చెప్తానంటే, మొదటిగా మీరు మొబైల్ని అవాయిడ్ చేయండి. మొబైల్ వల్లనే పిల్లవాడు మాట్లాడకపోవడం, కమ్యూనికేషన్ డిలే అవ్వడము, सोशलाइजेशन डिले अव्वడం ఇలాంటి జరగడం ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి। वेरी नाइस, थैंक यू। तो सर ने बताया, इनफैक्ट मैं बताता हूँ,
कि आपने खाने का बताया, डेफिनेटली पहले हमारा बेटा खाना नहीं खाता था, हमने सोचा नॉर्मल है, तो हम उसको खाना क्या करते थे, खिचड़ी खिलाते थे हमेशा। आपने बोला सॉलिड फूड देना चाहिए, हमने खिचड़ी खिलाया। उसका जो ये माउथ ऑर्गन है वो एक्सरसाइज नहीं किया, तो धीरे धीरे हम अब उसे च्युइंगम खिला रहे हैं ताकि वो थोड़ा च्युइंग करे। आप लोग बहुत ज्यादा ओरल मोटर की एक्सरसाइज भी करते हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो सॉलिड फूड इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, मोबाइल। बच्चा हमारा खाना नहीं खाता था, हम मोबाइल देके खिलाते थे, तो ये सारी गलतियां बंद करिए। अभी आप बच्चों को ग्राउंड में भेजिए, वॉलीबॉल खिलाइए, क्रिकेट खिलाइए, जो कर सकते हो वो करिए। जो दिन हमें देखने पड़ रहे हैं वो आप मत देखिए, ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरी वाइफ, मैं बार बार उसका नाम इसलिए लेता हूं कि आज 3 साल की मेरी बेटी हो गई है, वो मोबाइल छूती नहीं है, उसका सिर्फ आधे घंटे का स्क्रीन टाइम है जिसमें वो राइम्स देखती है। सो दिस इज व्हाट यू शुड ऑल डू माय फ्रेंड। I don't wanted any parents to suffer anymore because another problem in these kids are a gut system. इनका जो मोशन है वो पास नहीं होता है। तो I am right now working with my friends. I have got a very good friends, Abhishek Tripathi and Vipin. They are having the they are like a scientist. So they are in the biochemistry. So what they are doing? They have taken a poo of my son as a sample. उनकी पॉटी का वो उसका टेस्ट कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं वो लोग, नोवल जीन नाम है उनकी कंपनी का, और ये एशियन में है। तो वो लोग उसका टेस्ट करके मुझे बताएंगे कि तुम्हारे बेटे का खाना क्यों नहीं पचता है। तो वो उस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बाद मुझे बताएंगे, और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं मेरे बेटे का गट सिस्टम ठीक करूंगा। अगर वो ठीक होता है तो मैं रिकमेंड करूंगा सभी को कि उसका गट सिस्टम के लिए आप वर्कआउट करो। अगर आपके बेटे का गट सिस्टम, क्योंकि हम लोग एक डॉक्लोफ्लेक्स और ये सब जो पाउडर्स हैं वो उसको देते हैं, वो टॉयलेट पास हो जाता है, दैट इज टेम्परेरी। हमें वो अंदर का जो ये पैंक्रियाज है उसे फिक्स करना है, हमारी ये सारी चीजें, आई थिंक वो प्रॉब्लम है। तो दैट्स प्रीटी मच माय एक्सपीरियंस अबाउट हाउ आई एम डूइंग। फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज योर फाइनल एडवाइस फॉर द पेरेंट? कैन यू सम दिस कन्वर्सेशन अप? सर मैं क्या बोलूँगी बोले तो जो स्पेशल किड है, स्पेशल किड को एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देके एक नॉर्मल किड को जैसे आप ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करें तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा सर। क्योंकि स्पेशल किड्स को क्या है, हम पैम्पर करते, उनको डांटते नहीं, कुछ नहीं करते। जैसे नॉर्मल किड्स को हम अगर वो गलती करता है तो डांटते, ये सब सिखाना चाहिए। स्पेशल किड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होके नॉर्मल ट्रीटमेंट दीजिए, ऑब्वियसली बच्चा इम्प्रूव होगा सर। Okay, very nice. So your thing, final advice from you. Your advice, sir. After him. నేనేం చెప్తున్నానంటే సార్, మొదటిగా పిల్లల్ని ప్రేమించండి. ఇలాంటి పిల్లల్ని మొదటిగా ప్రేమించండి. ఇలాంటి పిల్లల్ని దగ్గర తీసుకోండి. మనం ఎంత ప్రేమ చేస్తే పిల్లవాడు అంత బహుగా వాడు మనకు దగ్గర అవుతాడు. అంతేకాని మీరు వాడు ఇలా ఉన్నాడని మీరు వాడిని దూరం చేయడము, వాడిని హేళన చేయడము, కుటుంబంలో ఈ వీడి వల్ల మీరు కొట్లాడు, అది కాదు. వీడిని మీకు భగవంతుడు ఇతనికి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మీరు ఇతని పోషిస్తాడని ఇచ్చాడు. మీ కుటుంబంలో ఇవ్వలేకపోవడం కారణం భగవంతుడు ఇచ్చిందే భగవంతుడు, దీన్ని పరిష్కరించేతోడు కూడా భగవంతుడు. भगवान ने जैसा दिया है उसे स्वीकार करके प्यार से बढ़ो. भगवान दिया है, दिया सो भगवान है गिफ्ट, उसको कैसा, उसको अपन कैसा ये करना है भगवान उसको सोल्यूशन देता है. जी जी बिल्कुल. अपने घर वालों को आप रिलेशनशिप किसी को भी नहीं दिया, बट आपको क्या लिए दिया? जी जी. आप उसको पैदा करते बोल के उसको शक्ति है, शक्ति बोल के आपको भगवान दिया, आपके अंदर शक्ति है, शक्ति है बोल के दिया. Right. ऐसे बच्चों को तुम अवॉइड ना करो सर, ऐसे बच्चों को तुम प्यार से करो और सब उनसे मिले रहो. सभी पेरेंट्स हो और उनके बच्चे, उनके भान हो और भाई हो, उनसे मिलो ज़्यादा. अगर उनसे आप कितना ज़्यादा मिलो तो बच्चा का क्या भी अगर डेवलपमेंट डिले रही तो हल्लू हल्ला बोल के रेडीज हो जाता, बच्चा अच्छे होने के चांस है. और अब हम जानेंगे भीम सर से, जो कि भीमा सर जो है भीम है. तो भीम सर 1-2 लाइन में यू कैन स्पीक इन तेलुगु. गो अहेड. పిల్లలకు ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే అందరితో మాట్లాడిపియడం, అందరినీ బాగా అంటే గేమ్ ఆడిపియడం, ప్లే చేపియడం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలకు ఏంటంటే
ఇప్పుడు అందరూ गेम इम्पोर्टेंट है, प्ले इम्पोर्टेंट है, ఇంకా పిల్లలకు స్విమ్మింగ్ स्विमिंग कराइए, स्केटिंग कराइए, आप कल बोल रही थी स्केटिंग कराना चाहिए, Skating. तो बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करो। नॉर्मल बच्चे इवन उतना पैम्पर भी नहीं देना चाहिए सर, क्योंकि उनका साइकोलॉजी पहले हमें जानना चाहिए। बट क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं मेरे एक्सपीरियंस में, ज़्यादा पैम्पर करे तो वो बिल्कुल ही नहीं करते, पेरेंट्स के बात नहीं सुनते, थेरेपिस्ट के बात सुनते, क्यों बोले तो हमसे डरते बोल के सुनते। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उनका माइंड सेटअप, क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं उनको मतलब स्ट्रिक्टली बिहेव करे तो वो मतलब नहीं करते, वो और लो में जाते, तो उनके माइंड के हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए। Very nice. Thank you so much. Thanks for the conversation, ma'am. Today, I think I will always be thankful to both of you. कभी स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कई बार जब मैं ऋषित को लेके जाता हूँ, अपने बेटे को लेके जाता हूँ, आप खुद सोचिए एक पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी। जब मैं उसे लिफ्ट से ऊपर जाता हूँ तो कुछ एक दो लोग हैं, सभी लोग नहीं हैं, एक दो लोग ऐसे हैं वो लिफ्ट से बाहर भाग आते हैं। क्यों? क्योंकि वो शोर मचाएगा या कुछ बोल देगा या कुछ बिहेव करेगा। तो सोचो उस टाइम पे मुझे एज अ पेरेंट कितना दुख पहुंचता होगा, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, कोई बात नहीं, it's नहीं okay। सर, ये आके जो है सिर्फ आके स्पेशल किड्स के पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल किड्स ये सबके लिए है। हमारा जो ये जो है ये उन सब पेरेंट्स के लिए है, ये पूरे इंडिया में रहने, पूरे वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के लिए है कि लेट्स इंक्लूड देम, दे आर आल्सो, दे बिलोंग्स टू दिस सोसाइटी। एंड आई एम टेकिंग अ ओथ टुडे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाऊंगा और वहां जाके एक पिटीशन फाइल करूंगा कि इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन दीजिए। आप इन बच्चों के लिए भी आपने बहुत सारे कैटेगरी में रिजर्वेशन दे रखे हैं, इन बच्चों को इनके पैरों पे खड़े होने के लिए कुछ इंक्लूसिव सेंटर बनाइए। और मैंने आपको बताया कि मेरे घर के पास में जो है वहां पर हम एक गार्डन बना रहे हैं, उस गार्डन में सारे बच्चों को खिलाएंगे, तो मंथली एक बार हम या वीक में हम ले जा सकते हैं उन लोगों को। तो लेट्स डू इट टुगेदर। आई एम इन दिस जर्नी, आई हैव स्टार्टेड इट, लेट्स डू इट टुगेदर। और जो बच्चे, कई बार मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं अभी घर में गया था तो मेरे घर में मेरे घर के बच्चे जितने हैं इतना अच्छे से प्यार करते थे ऋषित को। उन्हें पता था कि वो इज हार्मलेस, वो बेचारा अपना खुद नहीं कर सकता, आपको कहां से हार्म करेगा। यहाँ पर कई बार बच्चे भागते हैं उसको देख के। तो ये प्रॉब्लम मैं अकेला नहीं, हर वो स्पेशल बच्चे का पेरेंट झेल रहा है कि लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अपने बच्चों को आप समझाइए कि जब ऐसे बच्चे मिले उनको प्यार से इंक्लूड करें, उनको अपने साथ रखें। दैट इज व्हाट माय मैसेज टू ऑल द सोसाइटी मेंबर्स एंड एवरीबॉडी इन दिस इंटायर वर्ल्ड कि क्योंकि यूएस में मेरी एक सिस्टर है, वो यूएस गई है, उसके बच्चे को प्रॉब्लम थी। हम सब तो यूएस जा नहीं सकते, तो उसको ये प्रॉब्लम थी, तो सी वेंट टू यूएस। और वो बताती है कि जब बच्चा स्कूल वैन से उतरता है तो भाग के एक वहां की सिस्टर आती है, आओ आओ बेटा, आओ बेटा, ऐसे करके उसको लेके जाती है। तो जब बच्चे को प्यार मिलता है तो उसको लगता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सो सब लोग प्लीज स्प्रेड द लव, स्प्रेड द हैप्पीनेस, एंड वी हैव दिस एंटायर स्मार्ट स्ट्रॉन्ग टीम हु इज रेडी टू डू दिस विद अस। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर अस टुडे। दिखाना है क्या प्रीमाइसेस? It's okay. Yeah, I think let's just take a look on just the premises of their completely neat and clean, really hygienic, and this is every